In the previous one, we had seen electrolysis of water. So here is the ionic dissociation of water. First of all, you have to show, and this is to be the topic: ionic dissociation of this electrolyte. What is the electrolyte we had in the previous one? H2O. It will be H plus and OH minus. Now, what will happen? These, when the current passes, then these two ions will migrate to their respective electrodes. This will migrate to negative electrode, it means cathode, and this will migrate to anode. So what happened will be there, at what are the reaction will be happening at cathode and anode? Next step to be written. At C or at cathode, it will be neutralized and discharged. लिखना नहीं है, यहाँ सुनो पहले. It will be, this positive ion will be neutralized and discharged. To get neutralized, it needs one electron only. One electron. It is neutralized, and now one atom of hydrogen is discharged there, released there. Now, since hydrogen is a diatomic molecule, alright, so one more atom will be, two such atoms will be combined to form one molecule of hydrogen. At room temperature, hydrogen is a gas, so you will find at cathode the gas coming out. When the gas comes out, it appears like a bubbles on the electrode that you have seen. Since this gas is absolutely colorless and odorless, so you did not find any color, you did not observe any color, or you did not observe any odor of that gas. Understood? Now next is what happened at anode. This will migrate to anode, migrated here, now it will get discharged. Alright, extra electron will be released out from here, one electron, तो यहाँ पे मैंने माइनस E लिखा है, ऐसे ये बन गया OH. ऐसे चार OH आपस में मिलकर के ऑक्सीजन बनाएंगे और वाटर बनाएंगे. Two molecules of water and oxygen. वाटर तो इसी में डिसॉल्व होकर के रह जाएगा, मिल जाएगा. And oxygen will release at this electrode. Oxygen will be released as gas. You will observe this oxygen release as the bubbles. Since oxygen is also odorless and colorless, so no odor or no color will be observed. Only the bubbles you will see. Whenever you find it is the bubbles on the any of the cathode or anode, it means some gas is releasing over there. Alright. Now, one more point. At room temperature, all the metals are solid. All the metals are solid. And at room temperature, all the non-metals are, mostly all the non-metals are gas. Gas, oxygen, chlorine. Some are solid and brittle solid like that. Brittle solid. Few are the examples. Few are exceptions. Most of them are gas. और anion, non-metal क्या बनाते हैं? anion बनाते हैं. तो anion कहाँ जाता है? हमेशा एनोड पे जाता है. ठीक, तो एनोड पे आपको ज्यादातर क्या दिखेंगे? गैस के बबल, गैस रिलीज ही दिखाई पड़ेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे हमने लिया सेकंड जो हमने बनाया NaCl सॉल्यूशन. इस NaCl सॉल्यूशन का पहले आप आयनिक डिसोसिएशन देखिए. In this we have NaCl as well as we have H2O. सॉल्यूशन बनाया था मैंने वाटर में बनाया ना, तो ये हमारे पास तो इन दोनों का होगा नाउ. अब ध्यान से समझिए, अगर दो बच्चे को आप रेस करवा रहे हैं तो फिनिशिंग लाइन तक पहले कौन पहुंचेगा? कोई एक नहीं, जो तेजी से दौड़ेगा. देयर विल बी अ रेस एंड देयर विल बी रेस टू दैट रीच दैट फिनिश लाइन. कौन जो पहले पहुंचेगा? जो तेजी से दौड़ेगा. जब आपको सॉल्यूशन में मोर देन वन टाइप ऑफ कटायन हो, then there happens a race, or you can say the migratory race to reach the cathode. Whichever reaches there first, that will be the winner. Now the point is, इनमें से पहुंचेगा पहले का. इनमें से जो तेजी से दौड़ेगा, तो कैसे जानेंगे कि कौन तेजी से पहुंचेगा? ध्यान से समझिए. आपको इसके लिए जो रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ा ना मेटल का, उसको रिकॉल करना पड़ेगा. ध्यान से समझिए एक बार. जो जितनी ज्यादा, इसलिए बोलते कॉन्सेप्ट सुनो पहले. ये चैप्टर कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल है. आप 50 बार इसका नोट्स रख लीजिएगा, कुछ नहीं होगा जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होगा. इसलिए ध्यान से सुनिए, समझिए बात. इसको बंद कीजिए, कुछ नहीं बंद कीजिए. ठीक है. जो भी मेटल जितनी तेजी से या से जितनी भी ईज के साथ इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जितनी ज्यादा होती है, उतनी ही डिफिकल्टी के साथ वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है. यानी कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी. जो जितनी आसानी से कैटायन बनाकर इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, वो उतनी मुश्किल से गेन करेगा. मुश्किल से गेन करना मतलब उतनी ही मुश्किल से या उतनी ही देरी से वो न्यूट्रलाइज होगा. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है आपका रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहला कौन? पोटेशियम. और वो किस बेसिस पे बनाया गया है?
इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ईज ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजिंग। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बेसिस पे बोला है। जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज्यादा है वो सबसे ऊपर है, पोटेशियम। तो पोटेशियम सबसे देरी से डिस्चार्ज होगा, पोटेशियम सबसे देरी से डिस्चार्ज होगा। मतलब इस रेस में जो पोटेशियम अगर है सॉल्यूशन में, तो पोटेशियम सबसे देरी से डिस्चार्ज होगा, मतलब पोटेशियम सबसे लास्ट में डिस्चार्ज होगा। बात समझे? जिस मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में जिस मेटल की रिएक्टिविटी जितनी कम, वो उतना पहले डिस्चार्ज होगा। बात समझे? वो उतना डिस्चार्ज होने के लिए क्या करना है? इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो मेटल की जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जितनी ज्यादा कम होगी, वो उतनी तेजी से जल्दी रिगेन करके अपने आप को डिस्चार्ज करेगा। बात समझ गए? तो आपको जो इसको कहते हैं सिलेक्टिव डिस्चार्ज, ठीक है, सिलेक्टिव डिस्चार्ज। तो जैसे ही आपको दो केटायन या दो से ज्यादा केटायन किसी सॉल्यूशन में दी जाए, किसी इलेक्ट्रोलाइट में दी जाए, तो वहां पर आपको ये समझना है कि सिलेक्टिव डिस्चार्ज कौन पहले होगा। सीरीज को याद कीजिए, जो सबसे नीचे है वो पहले डिस्चार्ज होगा, ठीक है, जो नीचे है वो पहले डिस्चार्ज होगा। अब यहाँ पे बताइए जो नीचे कौन है? हाइड्रोजन पहले डिस्चार्ज होगा, पहले का। दूसरा पॉइंट, सेलेक्टिव डिस्चार्ज के तीन प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें से कि दो आपको पढ़ना है। पहला मैंने बता दिया अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, दूसरा होता है कंसंट्रेशन। इन दोनों में पोजीशन वाइज तो इसको पहले डिस्चार्ज होना चाहिए, लेकिन अगर कंसंट्रेशन सोडियम आयन की ज्यादा है हाइड्रोजन आयन से, तो सोडियम आयन डिस्चार्ज हायर द कंसंट्रेशन, व्हाटएवर केटायन हैज अ हायर कंसंट्रेशन, अगर H प्लस का होता है तो H। जी बिल्कुल, समझ गए? तो ये सेलेक्टिव डिस्चार्ज में ये दो पॉइंट्स हमेशा ध्यान में रखने होते हैं कि कौन सेलेक्टिव डिस्चार्ज। तो पहला तो पॉइंट आप देखिए कि रिलेटिव पोजीशन कहां है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में या रिएक्टिविटी सीरीज में, और दूसरा कंसंट्रेशन। अभी मैंने उसमें कितना सारा नमक डाला, आधा, ठीक है, तो कंसंट्रेशन उसमें मैंने सोडियम आयन का बढ़ा दिया। तो इस केस में यहाँ पे क्या डिस्चार्ज होगा कैथोड के ऊपर? सोडियम। अब आइए यहाँ एनायन का भी वही हिसाब किताब है, सेलेक्टिव डिस्चार्ज। छोटी सी एक सीरीज है जिसमें कि 5 या 6 एनायन है। हम आपको पेज नंबर दिखा देते हैं, सिर्फ 5 एनायन है, और उस 5 एनायन में आपको वो सीरीज एकदम पांचों का जो सीक्वेंस है ना, वो बिल्कुल आपको एट द टिप ऑफ द टंग वो याद रहना चाहिए। पेज नंबर 108, राइट हैंड साइड, पेज नंबर 108, राइट हैंड साइड। सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड एट लास्ट। हाँ, हाइड्रोक्साइड एट द लास्ट, जो सबसे नीचे, तो उसकी उसकी जो डिस्चार्ज इंक्रीज डिस्चार्ज उसकी मिला सबको। मिला। तो इसका क्या देखा? बोल रहे पेज नंबर 108 तो निकालो ना। फिजिक्स बाहर लेके फिजिक्स से लेके तो बाहर दिखाओ कर रहे हो फिजिक्स करके। फिजिक्स को बोल रहे हैं। At the top it is sulfate, then nitrate, then chloride, bromide, iodide, and then hydroxide. और hydroxide, और उसके बगल में जो arrow increasing ease of discharge, सबसे इजीली कौन डिस्चार्ज हो जाएगा इसमें? हाइड्रोक्साइड। और सबसे डिफिकल्टी के साथ कौन डिस्चार्ज होगा? सल्फेट। ठीक है, अब यहाँ जरा यहाँ पे क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड है, पोजीशन के हिसाब से बताइए कि कौन डिस्चार्ज होगा वहां पे? हाइड्रोक्साइड। ये डिस्चार्ज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हमने कंसंट्रेशन को उसमें जबरदस्त किया, क्लोरीन का कंसंट्रेशन उसमें बढ़ाया हुआ है, ठीक है, इसी कारण से हमको इसका डिस्चार्ज वहां पे दिखाई पड़ेगा, इसलिए आपको उसमें उतनी दुर्गंध दिखाई पड़ी। जो अभी भी स्मेल आ रहा है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होगा? हाँ बिल्कुल हो रहा है, देखो बबल्स निकल रहे हैं इसके ऊपर। चलिए, आप लोगों ने जो चीज यहाँ पे नहीं ध्यान से देखा वो देखा सोडियम का डिपोजिशन, वहां पे सोडियम का भी डिपोजिशन हुआ। मैंने क्या कहा अभी, इसका कंसंट्रेशन हायर किया है मैंने जानबूझ करके, उसमें नमक डाला उसमें, तो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन उसमें ज्यादा है, तो डिस्चार्ज कौन होगा? वहां सोडियम आप लोगों ने क्यों नहीं नोटिस किया? व्हाइट कलर का, जैसे कि साबुन का फोम कैसे नहीं जम जाता है पानी के ऊपर, एकदम पतला सा लेयर व्हाइट रंग का, वैसा ही उसके ऊपर जमा हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ सिंपल नमक का सॉल्यूशन है, नमक के सॉल्यूशन में तो ऐसा कोई लेयर ऊपर में नहीं जमता, लेकिन इसमें जमा हुआ दिखाई पड़ रहा है, वो सोडियम है। यहाँ पे खड़ा नहीं रहा जा रहा है, हमको इतना महक रहा है इसका। एक मिनट रुको, दिखाएंगे वो लोग। हाँ बोलिएगा।
टीचिंग बहुत स्टेफी दिखा एक जलावा माचिस में 4 बर्नर जलाना पड़ता है। अब बोलिए इससे ज्यादा क्या बोल लगे एक बर्नर जला, अब वही जलावा के लिए 4-5 को बर्नर 4 को बर्नर। चलिए क्या हो गया, हमेशा मार ही करते रहता है, बस लड़ाई ही करते रहता है। चलो हो गया गप, चलो बस। ये जो दोनों टेबल आपको दिखाई पड़ रहा है, ये दोनों ही टेबल सेलेक्टिव डिस्चार्ज के लिए आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। पहला जो टेबल है वो केटायन के लिए है। उसमें मैंने आपको कहा कि केटायन सीरीज आपको लर्न करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो रिएक्टिविटी सीरीज है वही रिकॉल कीजिए। जो मेटल नीचे है रिलेटिवली, जिसका पोजीशन लोअर पोजीशन में आता है, वो पहले डिस्चार्ज होगा, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे किसी भी सॉल्यूशन में मैग्नीशियम भी है और कॉपर भी है, तो कौन पहले डिस्चार्ज होगा? कॉपर। सोडियम है और मैग्नीशियम है, तो कौन पहले डिस्चार्ज होगा? पोटेशियम है और सोडियम है तो एल्युमिनियम है और कॉपर है तो एल्युमिनियम और कॉपर है तो कॉपर लोअर पोजीशन में है ना, इसलिए, ठीक है। और अगर आपको एनायन सीरीज पूछा जाए तो आपको इसमें 5 एनायन, इस सीरीज में 5 से ज्यादा भी एनायन हो सकते हैं, होते ही हैं। ये सीरीज आपको उतना ही बनाया गया है जितने की आपके सिलेबस के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब आप इसमें ये पांचों का सल्फेट, शुरू से सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, यानी कि तीनों हलाइड है आपको पढ़ने के लिए, उसमें लिखा हुआ, एंड द लास्ट हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले कौन? हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले कौन डिस्चार्ज होगा? हाइड्रोक्साइड, ठीक है। लोअर पोजीशन जिसका है वो हाइड्रोक्साइड, वो डिस्चार्ज होगा, ठीक है। अगर हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज हुआ तो कौन सी गैस निकलेगी वहां पे? ऑक्सीजन। अभी वहां पे हम लिखे हैं, देखो, हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज हुआ तो ऑक्सीजन गैस निकलेगी, ठीक है। आयोडाइड डिस्चार्ज हो तो आयोडीन गैस निकलेगी, ठीक। आयोडीन का क्या होता है कलर बताओ तो? पर्पल कलर का। आयोडीन वेपर पर्पल कलर का होता है। सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन दिखाया गया है लैब में। वो एक वो क्या है, आयोडीन का जो है मोटी चक्का, हाँ छोटा क्रिस्टल, हाँ। वो दिखाता ही नहीं है, टेस्ट में उसको बंद करना था, उसके बाद इवैपोरेट होकर के पूरा टेस्ट पर्पल वेपर, उसी को तो सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन इज अ सब्लिमेट। अरे प्लीज, आयोडीन इज अ सब्लिमेट, ठीक है। आयोडीन इज अ सब्लिमेट, और ये इतना जबरदस्त सब्लिमेट, उसको बर्नर पे भी ले जाने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ टेस्ट ट्यूब को आप गरम कर लीजिए, उसके बाद बस टेस्ट ट्यूब को गरम कर लीजिए, उसके बाद उसको बर्नर से हटा लीजिए, उसके बाद छोटा सा आयोडीन टुकड़ा उसमें डाल के इमीडिएटली उसको स्टॉपर लगा दीजिए, ठीक है। वो पूरा टेस्ट ट्यूब को कवर कर दिया। हाँ, तो वेपर है ना, गैस वेपर, उसको जितनी जगह मिलेगी उतनी जगह वो ऑक्यूपाई कर लेगा। गैस नहीं पड़ेगा दुश्मन अगले दिन से बोल देना डिफ्यूजन ऑफ गैस नहीं पड़े हो पाकिस्तानी, लोगों को चैन मिलेगा। चलो ठीक है, अब आप जरा सा हला नहीं करो। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस इज अ redox process. Justify. Electrolysis is a redox process. Justify. कहाँ मतलब कौन से इलेक्ट्रोड पे? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है देखिए तो जरा, यहाँ देखो। हर 5 मिनट के बाद हम किसी को टोक नहीं सकते, ठीक है। ऐसे करते रहे ना तो 2 साल भी बहुत कम पड़ेंगे हमको सिलेबस खत्म करने के लिए। ये आप ही लोगों की इतने छूटे कि मात्र 14-15 बच्चे होते और इतना हल्ला कर लेते, वरना 60 बच्चे मेरे क्लास में होते और पिन ड्रॉप साइलेंट रहता है, पूछ लीजिए इससे। सांस भी लोग उतनी ही लेते हैं जितनी मेरी परमिशन होती है। यहां दिख रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस पे? कैथोड पे। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, ठीक है। तो कैथोड को बोलते हैं रिडक्शन, रिड्यूसिंग, हाँ, एनोड, इलेक्ट्रोड, रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड, ठीक है।
हाँ इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड एट विच द रिडक्शन हैपेंस और द इलेक्ट्रोड द साइट ऑफ रिडक्शन, द इलेक्ट्रोड विच इज द साइट ऑफ रिडक्शन। यहाँ पे क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रोड यानी कि रिडक्शन, और यहाँ क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई इलेक्ट्रोलिसिस इज अ रिडॉक्स प्रोसेस, दो सेंटेंस लिखना होता है। At cathode it happens reduction, at anode it happens oxidation, so it is a redox process। बस यही दो, उसमें दोनों ही इलेक्ट्रोड के बारे में आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है, कौन सा रिडक्शन साइट है, कौन सा ऑक्सीडेशन साइट है, दोनों को स्पेसिफाई कर, हम लिखवा देंगे ये सारे क्वेश्चंस आपको। ठीक है, बात समझ आई। इलेक्ट्रोलिसिस, अच्छा हम कल डिस्कस किए थे मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के बारे में, क्या अंतर होता है दोनों। दिस वन इज केमिकल चेंज, दैट वन इज फिजिकल चेंज। इसमें टू स्ट्रीम्स ऑफ मूवमेंट इज ऑब्जर्व्ड, टू स्ट्रीम्स ऑफ मूवमेंट मतलब कि माइग्रेशन ऑफ कैटायन फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट टू कैथोड एंड माइग्रेशन ऑफ एनायन फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट टू एनोड। उसमें क्या होता है, जस्ट वन स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ऑलराइट, सिंगल स्ट्रीम, इसमें दो स्ट्रीम दिखाई होती, ये मेन जो डिफरेंस है इन दोनों का। एंड इट इज अ रिडॉक्स प्रोसेस, यानी कि केमिकल चेंज हो रहा है, वहां पे कोई ऐसा केमिकल चेंज नहीं हो रहा। We will discuss about active electrode and inert electrode। एक्टिव इलेक्ट्रोड, जब हम इस इलेक्ट्रोलिसिस के मैकेनिज्म में, जैसे हमने वहां पे भी किया था, तो ग्रेफाइट रॉड लिया था दोनों। अच्छा हाँ, एक और चीज, ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है कि ये सारे कंडक्टर्स को हम कैथोड बनाएंगे, ये सारे कंडक्टर्स को हम एनोड बनाएंगे, ये बिल्कुल भी कोई कैटेगरी नहीं है। किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल को आप कोई सा भी इलेक्ट्रोड बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दोनों ही इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल लिया है, ग्रेफाइट लिया था, दोनों ही इलेक्ट्रोड, जिसको भी आप नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए वो हो गया कैथोड, जिसको भी आप पॉजिटिव से जोड़ दिए वो हो गया एनोड। ठीक है, सेम मटेरियल भी ले सकते हैं, अलग अलग मटेरियल। सपोज कीजिए एक मैंने लिया ग्रेफाइट रॉड, दूसरा मैंने एल्युमिनियम फॉयल का पतला सा रॉड बना लिया, एल्युमिनियम मेटल है, ठीक है, एल्युमिनियम फॉयल का पतला सा रॉड बना करके उसको उसमें जोड़ दिए। तो एल्युमिनियम फॉयल में क्या होगा, बबल्स दिखाई नहीं पड़ेगा, बिकॉज व्हाइट शाइनी सरफेस है, तो ये जो बबल्स अगर बनेंगे तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। ठीक, तो कोई भी आप कंडक्टिंग मटेरियल को एज एन इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है कि ये सारे कैथोड के रूप में, ये सारे एनोड के रूप में इस्तेमाल होंगे। बात समझ आई। एक्टिव इलेक्ट्रोड किसको बोलेंगे, जो इस मैकेनिज्म में केमिकली पार्टिसिपेट कर रहा हो, वो हुआ एक्टिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, और इनर्ट इलेक्ट्रोड किसको बोलेंगे, जो उसमें बस फिजिकल प्रेजेंट तो रहना ही है ना, फिजिकली तो वो प्रेजेंट है ही, उसमें केमिकली पार्टिसिपेशन उसका नहीं हो। जैसे अभी हमने लिया था ग्रेफाइट रॉड, क्या ग्रेफाइट का केमिकल पार्टिसिपेशन उस मैकेनिज्म में था, बिल्कुल भी नहीं। फिजिकल नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रोड तो यूज करना ही ना है उसमें। आप इसी तरह से आप लोग कंफ्यूज होते हैं। हम क्या बोले, inert electrode which is chemically not participating there, active electrode which is chemically participating there in that mechanism। आप फिजिकल प्रेजेंस की बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि फिजिकल प्रेजेंस, इलेक्ट्रोड का फिजिकल प्रेजेंस इज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ दैट मैकेनिज्म। बिना इलेक्ट्रोड के होगा ये नहीं होगा ना। सो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोड, फिजिकल प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोड इज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ दिस मैकेनिज्म। उस दोनों फिजिकल प्रेजेंस, अगर दोनों में से जो भी इलेक्ट्रोड, दोनों में से कोई भी एक इलेक्ट्रोड अगर उसमें केमिकली पार्टिसिपेट, बिकॉज जो भी इलेक्ट्रोड हम ले रहे हैं वो एक कंडक्टर है तो केमिकल ही ना, वो है तो वो केमिकल ही। तो अगर वो उस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन से, या उसमें जो हम उसमें वोल्टेज पास कर रहे हैं उसकी वजह से वो उसके जो मेटल है वो भी एक्टिवेट हो गए। ठीक है, आपके पास है वैसे केस स्टडीज पढ़ने के लिए, जिसमें आप देखेंगे कि वहां पे वो जो इलेक्ट्रोड है वो कैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट, केमिकली वो कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वहां पे उसको हम एक्टिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इसका एक ही लाइन में आंसर लिखना है, व्हाट इज एक्टिव इलेक्ट्रोड, विच इज केमिकली पार्टिसिपेटिंग इन दिस मैकेनिज्म। इन दिस मैकेनिज्म, इनएक्टिव इलेक्ट्रोड या इनर्ट इलेक्ट्रोड, नॉट केमिकली पार्टिसिपेटिंग इन दिस मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बस इतना ही लिखना होता है। ठीक, उसके बाद आपको थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन है, सिलेबस में नहीं है बिल्कुल, ये अर्हेनियस ने दिया था इसलिए हम कभी नहीं पढ़ाते। पेज नंबर 105, पेज नंबर 105। हाँ ले लीजिए ना, ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद है पेज नंबर 105 के राइट हैंड साइड में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो मैकेनिज्म
जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इस मैकेनिज्म के मैंने समझा है वो सारे पॉइंट वाइज इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। हाँ लिखा हुआ है उसमें। अच्छा एक चीज कल हम बताए थे, टाइप ऑफ करंट विच इज यूज्ड इन दिस मैकेनिज्म इज ऑलवेज डीसी, ऑलवेज डीसी, ऑलवेज डायरेक्ट करंट हम इस्तेमाल करते हैं इसमें, एसी नहीं इस्तेमाल करते, अल्टरनेटिंग करंट नहीं इस्तेमाल करते। रीजन ये है कि डीसी करंट जो होता है वो, उसका ग्राफ कैसे बनता है डीसी का, बताओ तो जरा सा। फिजिक्स में पढ़े नहीं है करंट इलेक्ट्रिसिटी में? डीसी और एसी पढ़ाया जाएगा, उसका ग्राफ नहीं बताया जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। डीसी यूनिफॉर्मली, एक तो यूनिफॉर्म करंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, और एसी अल्टरनेटिंग करंट है, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों फ्लक्चुएट करता है ना। इसका जो एसी का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ना वैसे करके होता है, वेव लाइक हाँ वैसे वेव लाइक उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया जाता है। अल्टरनेटिंग करंट इसलिए उसका नाम ही है, उसके जो डायरेक्शन, हाँ उसकी जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है वो वैरी करता है विद द टाइम, वो वैरी करता है। और डीसी में ऐसा नहीं होता, विद द टाइम इट डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम। अगर इसमें अल्टरनेटिंग करंट डालेंगे ना तो जो स्पीड है एक तो वो कम ज्यादा होती रहेगी, ठीक है, और धीरे धीरे करके वो उसका जो क्या बोलते हैं डिपोजिशन है वो बिल्कुल अनइवन तरीके से होगा। आप लोगों ने, हम लोग कहते हैं ना चांदी का जेवर है उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ाया हुआ है, ये जो प्रोसेस है ना ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, जिसमें चांदी के जेवर के ऊपर जो गोल्ड की पतली सी कोटिंग चढ़ाई जाती है। हाँ गोल्ड की पतली, हाँ गोल्ड की पतली सी कोटिंग चढ़ाई जाती है, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं कि सोने का पानी चढ़ाया गया, क्योंकि वहां पे जो इस्तेमाल होता है वो फ्यूज्ड गोल्ड, इलेक्ट्रोलिसिस है ना, तो गोल्ड को हमको पहले मोल्टन करना पड़ता है, मोल्टन गोल्ड इस्तेमाल करते हैं वहां पे, इसलिए बोलता है सोने का पानी चढ़ाया गया, ठीक है। आपके घर में जो ये लोहे की जितनी भी चीजें, जैसे लोहे की बाल्टी, उसके ऊपर क्या है, लोहे का वो है, लेकिन वो कैसा कलर दिखाई पड़ता है, ग्रे कलर दिखाई पड़ता है। 10 साल में भी उसमें रस्ट नहीं आता, ऐसा क्यों है, क्योंकि उस लोहे की बाल्टी के ऊपर जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई है, ठीक है। आपके जो बाइक्स हैं, कार्स हैं, उसमें जो डोर हैंडल्स होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं, है वो लोहे का बना हुआ पर चमकता है स्टील जैसा। वो क्या है, वो उसमें नाइक्रोम की कोटिंग, निकल और क्रोमियम एक अलॉय, उसकी कोटिंग उसके पर चढ़ाई जाती है। तो ये एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की जो कोटिंग चढ़ाई जाती है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज प्रिंसिपली इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। ऑलराइट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज प्रिंसिपली इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िए, अगला जो मेटलर्जी चैप्टर है उसमें इसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, समझे, इसलिए वो समझ नहीं आएगा अगर नहीं पढ़ेंगे ठीक से। तो आज ये एक्टिविटी दिखाने के चक्कर में हम लिटरेचर लिखा नहीं पाए। चलिए बंद कीजिए इसको।